Register now. Hey class, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam and khamba to all of you. Welcome to today's class, and as you all know, this is your one shot videos, and today's our topic. Our topic is CBSE 9. This session is for CBSE 9, and the topic which we are covering is your topic circles. Okay, so if I talk about this session, so this chapter includes a lot of theorems. Okay, so these theorems I have covered when I have done in the Umang series. So these theorems, they are proof of all the theorems I have already discussed when I have covered the Umang series. So in this session, we'll not be doing the proof of the theorems. We'll be just going through all the theorems. We'll be understanding those theorems. For the proof, please watch the Umang videos, and then we'll be solving some questions as well. Okay, so this is the plan for today's session, and with this session, we'll be solving all the types of questions related to this. Related to these chapter, that is your topic circles, and the important questions we are going to discuss. ठीक है बेटा? So we'll be starting the class. So let's start the class. So by first thing, what is a circle? So circle is the collection of all the points in the plane which are at a fixed distance from a fixed point in a plane. That means if there is a fixed point, from this fixed point get the list of all the points which are at a fixed distance. For example, say 5 centimeters. So one point here at 5 centimeter, one point here at 5 centimeter, one point here at 5 centimeter, one point here at 5 centimeter. Then one more point here at 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter. So if all these points you will join, you will get a shape which is called circle. So this fixed point is called center of the circle. This fixed distance is called the radius of the circle, and all these points are going to form a circle. ठीक है बेटा? अब this fixed distance is radius, the middle point is called the fixed point is called the center of the circle. याद रखना, double of the radius is the diameter, है ना? Now in any circle there are three parts. तो देखो, one होता है कि interior of the circle, one is the exterior of the circle, and the third one is on the circle. On the circle means these points. So these points are on the circle. This point is on the exterior. This point is on the interior of the circle. ठीक है? So any plane can be divided in these three parts. After that, what is the chord of a circle? So chord of a circle क्या होता है बेटा? That any two points, you take any two points on a circle and join them with a straight line. So that straight line will be called the chord of the circle. And if any chord is passing through the center, then it will be a diameter. So remember, diameter is the longest chord for any circle. Diameter is the longest chord for any circle, and its length, diameter, is equal to what? Twice of radius. ठीक है बेटा? अब देखो arc क्या होता है? तो suppose if this circle is, we have here this circle, so this straight line will be called chord. And if this P and Q, देखो, when I join it with the straight line, they are called chord. This P and Q, if I travel along the circle, so this part of the circumference of the circle is called arc. Part of the circumference of the circle is called arc. So a piece of circle between two points or a part of the circumference. ठीक है? Semicircle, half of the circle. Circumference means the length of the circle, है ना? Semicircle means length of the boundary, so that will be called the circumference. So arc is what? Arc is a part of the circumference, some part of it. It will be called an arc. Okay. अब देखो, एक चीज होता है sector, other is segment. तो sector क्या होता है कि बेटा, sector is the area between two chords and the arc. ठीक है? Two chords and the arc. तो ये तुम्हारा दो रेडियस है, two radius and the arc. The sector is the area between two radius and the arc. अब देखो, अगर ये छोटा वाला arc है, मतलब minor arc है, so this will be minor sector. If it is the major arc, then it will be the major sector. ठीक है? तो you can relate sector as the piece of a pizza. Pizza के pieces ऐसे ही होते हैं ना, from the center to piece coming outside the circular part. So piece of a pizza looks like the sector of a circle. Okay, what is a segment? So segment is the area which is held by a chord and the respective arc. तो अगर ये chord PQ है and this part, this arc, if I include them,
तो I will get a segment, and if I include the major arc, so the area between the major arc and the chord will be your major segment. So sector is formed by two chords and two radiuses and the respective arcs. The sector is formed by two radius and the respective arcs. The segment is formed by one chord and the respective arc. ठीक है, तो this is the difference between the sector and the segment. With the help of diagram it is more clear. ठीक है बेटा, उसके बाद में there is one theorem कि angle subtended by a chord at a point. कोई भी एक सर्कल, there is this chord, so this angle AOB is called the angle subtended by this chord at the center, and this angle ACB will be called the angle subtended by it at the circumference. ये ADB जो होगा ये भी also angle subtended by it at the circumference. ठीक है, तो ये angle subtended by a chord, ये तुम्हारी तीन चीजें होती हैं. ठीक है, अब उसके बाद में थ्योरम्स देखो. थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. मतलब कि सपोज इफ आई से कि दिस एंगल, दिस कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस, इफ दे आर इक्वल, इफ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, देन वी कैन से कि सर दिस एंगल एंड दिस एंगल सबटेंड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल. तो वी कैन से एंगल POQ is equal to angle ROS. If two chords are equal, then their angles at the center will also be equal. Now the opposite of it will be the converse. The converse क्या होगा बेटा? That if the angles are equal, then I can say the chords are also equal. So if I say that angle POQ is equal to angle ROS, if the angle subtended by two chords at the center is equal, then I can say that chords also are equal. Then I can say chords also are equal. ठीक है, next theorem is the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. That means कि बेटा if I draw any perpendicular from the center of the circle to any chord, कोई भी एक chord है, suppose this AB is a chord, okay, and from the center O if I drop a perpendicular on AB, that is, sorry, AC is a chord. So if I draw perpendicular OB on the chord AC, from the center, if I am dropping a perpendicular on the chord AC, then always remember beta, this chord, this perpendicular will bisect the chord. So I can say then AB is equal to BC. याद रखना, the perpendicular has to be from the center. It has to be dropped from the center, not any other point. So perpendicular from center bisect the chord. The next theorem is just the converse of it. That is कि भाई suppose from the center if you draw a line which is bisecting the chord, that means कि भाई center को if you will join with the midpoint of AC, if AB equal to BC, अगर ऐसा दिया हुआ है AB equal to BC, हाँ, if AB and BC are given equal, and if this B, if you join with O, so then OB will be perpendicular to the chord. So this is just the converse of it. This is just the converse of it. All these proofs, they are simple proofs using the congruency of triangles. देख लेना, एक एक सेकंड के प्रूफ है, बहुत इजीली हो जाएंगे. Theorem, next theorem क्या है? Equal chords of a circle are equidistant from the center. मतलब मान लो if I give you that if AB is equal to CD, अगर AB and CD are two equal chords, then their distance from the center. अब एक बात again बेटा I would like to tell you all कि मान लो एक point है and एक line है, ठीक है, तो उनके बीच का जो distance होता है, the distance between these two is the perpendicular line drawn to that. तो इस point से, from this point P, whatever perpendicular you are dropping here, let's say AC, so this PC is distance of point P from AB. ठीक है, तो this is a point O, ये AB है, so distance between O and AB will be the perpendicular dropped OM, and here the distance will be ON. ठीक है, तो if AB and CD are equal, their distance from the center will also be equal. That means then I can say sir OM is equal to ON. OM is equal to OM.
और नेक्स्ट जो थियरम होगा दैट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ इट, कि अगर टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब इफ OM इज इक्वल टू ON, अगर मैंने ये बोल दिया कि डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, दैट इज इफ OM इज इक्वल टू ON, then I can say chords are also equal. So if chords are equal, they are equidistant from the center. If the chords are equidistant from the center, the chords will be equal. ठीक है. Next part, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. मतलब कि मान लो ये arc जो है, ये PQ, ये अगर मान लो यहाँ पे it is subtending an angle of 60 degree. So in the remaining part of the circle, कहीं पे भी the angle subtended by it will be 30 degree. ठीक है. अब मान लो angle subtended by this major arc, ये major arc is subtending at an angle of suppose say 150 degree. So the angle in the remaining part, this angle is going to be 75 degree. Half of it, half होगा. ठीक है. अब same way बेटा, if I will draw a diameter, तो ये डायमीटर पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सो हाफ ऑफ इट इज 90 डिग्री. सो फ्रॉम हियर वी गेट्स टू से दैट एंगल एट द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. एंगल जो होता है सेमी सर्कल पे दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. Okay, then next, angles in the same segment of a circle are equal. Obviously, अब एक बात बताओ यार, अगर ये एक आर्क है तुम्हारे पास में, ठीक है, तो let us say angle subtended by this arc is double of x, तो circumference पे क्या होगा, हाफ होगा, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा. तो in this whole segment, anywhere if I join, the angle will be half of 2x, मतलब x ही रहेगा. तो angle in the same segment are equal. This is also an important theorem. Angle in the same segment are equal. उसके बाद में one of the most important part, that is your cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral is a very important part from this chapter. Every year there is a question from this part. तो cyclic quadrilateral क्या होता है बेटा, इसमें in this opposite angles are supplementary, मतलब that angle A plus angle C will be 180 degree and angle B plus angle D will be 180 degree, and since it is a quadrilateral, sum of all four angles is 360 degree. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, दैट ऑल द फोर वर्टाइसेस ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल, ऑल द फोर वर्टाइसेस ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल A, B, C and D, all the four vertices lie on the circle. चारों के चारों vertices will be on the circle, that is called the cyclic quadrilateral. So in a cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary. Now its converse is also true, that is if we have a quadrilateral in which opposite angles are supplementary, then the quadrilateral will be a cyclic quadrilateral. That means we can draw a circle which will pass through all the four vertices. So it is not necessary that every time all the quadrilaterals are cyclic. No, only those quadrilaterals in which the opposite angles are supplementary, only they will be called cyclic quadrilateral, not all. ठीक है. तो you can also see that square, rectangle, they are always cyclic. Why? Because in square and rectangle opposite angles are always supplementary. So this is how you are linking the part. ठीक है. तो these are your theorems in this chapter. अब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. A chord of length 16 cm is drawn in a circle of radius 10 cm. Find the distance of the chord from the center of the circle. Center of the circle से उसका distance बताओ. तो देखो भाई, there is a chord of length 16 cm. ये मान लो AC is equal to 16 cm. In a circle of radius 10 cm, radius 10 cm, find the distance of the chord from the center. मतलब distance of the chord from the center means draw perpendicular. तो ये perpendicular, let's say it is O, it is B. तो you have to tell me what is this OB. OB बताना है बेटा. What is OB? ठीक है. अब OB की लेंथ पता करने के लिए देखो, one thing is for sure that perpendicular, we know perpendicular from center bisect the chord. So we can clearly say AB is equal to BC.
तो ये कितना हो जाएगा, ए बी एंड बी सी आर इक्वल, दे विल बी हाफ ऑफ ए सी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये ए बी 8 हो गया, BC also is 8, and also this OA, the radius is given as 10 centimeter. So you can clearly see that in triangle AOB, angle OBA is 90 degree. It is a right angle triangle, so it will follow Pythagoras theorem. So I can say OA square is equal to OB square plus AB square. OA is 5, so 5 square, sorry, OA is 10, so 10 square is equal to OB square, I don't know, plus AB is 8 square. So 100 is equal to OB square plus 64. Shift 64 over there, so OB square is 100 minus 64 is 36. So OB will be 6 centimeter. So the distance of the chord from the center of the circle will be 6 centimeter. Easy question है, बहुत easy question है, 1 mark 2 marks में आते रहते हैं these kind of questions. Okay, तो diagram याद रखना. So the theorem which we have used here is perpendicular from center bisect the chord. That is I have got to know that AB is equal to BC, है ना. So the theorem which we have used is what? Perpendicular from center bisect the chord. Okay, chalo let's go for the next question. Next question. Achha, before I move for the next question, let me tell you all कि भाई till now whatever problem you are facing wherever you are studying will be solved at Vedantu, because here in each and every class doubts will be taken care of by a dedicated teacher. Notes and assignments will be shared with you after each and every class you attend on Vedantu. Test will be taken in the regular interval of time on your examination pattern. Competitive examinations के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. NTSC, KVPY, everything will be done at Vedantu only. Schedule, that is suppose if you miss your class because of some reason, no need to panic, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Directly what you can do is कि भैया कुछ नहीं करना है, रिकॉर्डिंग देख लो क्लास की, you will feel like you have not missed out on anything. And then choice of language, Hindi or English. Other than that, you are getting unlimited live classes. Micro courses and crash courses are also available to you. Micro courses means chapter specific courses. So any chapter you want to revise again, or you want to study again, or you want to study that first, you can design your own curriculum. You can study whatever chapter you want. And crash courses are your revision courses. Other than that, performance reports will be shared with you and personalized attention to each and every student. So for this, you need to go to this link vdnt.in/ytpro and apply the coupon code GPPRO. जैसे ही GPPRO coupon code लगाओगे, the benefit is you will get 15% off मिलेगा. मैं तुमको बताऊंगा फीस स्ट्रक्चर वगैरह एट दी एंड. अभी के लिए थोड़ा आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB and CD are two parallel chords of length 8 centimeter and 6 centimeter. Calculate the distance between them, between the chords, if they are on the same side of the center and on the opposite side of the center. ठीक है, तो दो केसेस हैं. एक तो बोल रहा है कि when the chords are on the same side of the center, दूसरा बोल रहा है when the chords are on the opposite side of the center. तो फर्स्ट वाले का डायग्राम कैसा होगा बेटा? Suppose this is your circle. One chord, both the chords are on the same side of the center. तो एक chord यहाँ पे है and other chord is over here. Okay, AB and CD are two chords of length 8 and 6 centimeter. तो AB is the bigger one. AB is 8 centimeter. CD is 6 centimeter. Both are on the same side. तो parallel chords है. तो perpendicular dropped. Okay. O, let's say OP, OQ. OP is the perpendicular on AB, OQ is the perpendicular on CD. ठीक है. सेकेंड केस क्या होगा बेटा? When they are on the opposite sides of the center में मतलब कि ऐसा. Here the chord length is 8 centimeter. AB जो है तुम्हारा that is 8 centimeter, and here suppose CD is 6 centimeter and center of the circle is over here. So here this case OQ and this is your OP. Perpendicular. Distance is what? The perpendicular है ना. Distance between the point and the line is drawn perpendicular on it. तो अब देखो यार, एक को सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला वैसे का वैसे मिल जाएगा. वो कैसे होगा? चलो मान लो ये सेकेंड वाला केस. इफ आई सॉल्व द सेकेंड केस, तो ये मेरे पास में OA एक रेडियस है एंड OC इज अनदर रेडियस.
दोनों रेडियस से रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तुम्हारा रेडियस है। AB का लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, तो AB कंप्लीटली अगर 8 सेंटीमीटर है तो AP हाफ होगा, वो 4 सेंटीमीटर हो गया। एंड CD अगर 6 सेंटीमीटर है तो CQ हाफ होगा, वो हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। करेक्ट है, ये तो दिख रहा है सही से, करेक्ट। तो मैं बोलूंगा कि सर AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, मतलब कि हाफ ऑफ 8 विच इज 4 सेंटीमीटर, एंड CQ is half of CD, that is half of 6 which is 3 centimeter, because perpendicular from center bisect the chord, है ना। अब देखो ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP पे देखोगे अगर तुम लोग तो आई कैन से कि सर ये राइट एंगल है अगर यहाँ पे, तो AO इज द हाइपोटेनियस, सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA स्क्वायर तुम्हारा 5 स्क्वायर है, AP जो है तुम्हारा 4 स्क्वायर है, तो 25 माइनस 16 9 आएगा, तो 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट पता ही है, तो OP विल बी 3 सेंटीमीटर। OP कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर सिमिलरली ट्राइंगल COQ देखोगे तो इन ट्राइंगल COQ में क्या होगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। तो इस टाइम पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ इज 3 स्क्वायर इज 9, तो 25 माइनस 9 इज 16, तो OQ मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो सेम कैलकुलेशन रहेगी, यहां पे भी सेम 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये वाला पार्ट 4 है, इस केस में ये वाला 5 है, ये वाला पार्ट 3 है, तो OP OQ डिस्टेंस तुमको सेम मिलेगी, है ना, डिस्टेंस सेम मिलेगी। अब डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स पता करना है, तो फर्स्ट केस में बेटा देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स जो है तुम्हारे पास में, ये जो है तुम्हारा PQ है, एंड PQ इज इक्वल टू, इन दिस केस इट विल बी इक्वल टू OQ माइनस OP। OQ कितना है 4 माइनस OP इज 3 विच इज 1 सेंटीमीटर, करेक्ट है। एंड इन द सेकेंड केस द डिस्टेंस बिटवीन the two chords is PQ only, but this time PQ, since they are on the opposite side, it is the addition of OP plus PO, sorry, plus OQ, OP plus OQ, OP is 3, OQ is 4, which is equal to 7 centimeter. तो opposite वाले केस में the distance between them is 7 centimeter, and together when on the same side the distance between them is 1 centimeter. ठीक है, तो डायग्राम्स को समझ जाओगे तो द टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इजी। अगर डायग्राम को समझ गए अच्छे से तो टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। तो दोनों डायग्राम अलग अलग है, बट ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स है, एक केस में हो जाएगा OQ माइनस AP, एक केस में OP, एक केस में हो जाएगा OQ प्लस OP, सिंपल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर द डायमीटर CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, डायमीटर CD, तो ये जो CD है ये तुम्हारा डायमीटर है, विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर है। AB बोल दिया है 12, CE जो दिया हुआ है वो है 3, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये CD डायमीटर है तो मैं ये बोल सकता हूं ना यार कि सर ये OC जो है ये हमारा रेडियस होगा, राइट। एंड अगर ये CE जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दिस OE विल बी R माइनस 3 सेंटीमीटर। तो पहला बात मिल गया सर, OE इज इक्वल टू R माइनस 3, R इज व्हाट, योर रेडियस। अब OA जो होगा बेटा वो भी तो रेडियस होगा, OA इज ऑल्सो रेडियस, ओके। एंड AE जो होगा बेटा, AE विल बी हाफ ऑफ AB, क्यों, बिकॉज दिस OC ये जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर AB 12 है तो AE 6 हो जाएगा, BE ऑल्सो विल बी 6, ठीक है। तो ट्राइंगल OAE एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो आई कैन से सर OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। OA कितना यार R, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू OE इज R माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस AE
जो है वो तुम्हारा 6 स्क्वायर, तो इट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 इंटू आर इंटू 3 विच इज माइनस 6 आर प्लस 36 r square got cancelled 36 plus 9 is 45 shift minus 6r over there so 6r is equal to 45 r is equal to 45 by 6 divide by 3 so 15 3s are 6 3s are 15 by 2 which is equal to 7.5 centimeter radius is equal to 7.5 centimeter important question है ठीक है रेडियस क्या हो गया 7.5 सेंटीमीटर बस तो डायग्राम पे अगर तुम लोग ज्यादा ध्यान दोगे डायग्राम पे ट्राई टू फाइंड आउट जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन निकालो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा तो डायग्राम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है बेटा जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डायग्राम में नोट डाउन करो कि हाँ कौन सी चीज क्या है और स्पेशली ये सर्कल वाले चैप्टर में रेडियस कौन सी है वो सब चीजें देखते रहो ट्राइंगल फॉर्म करो राइट एंगल दिख जाता कहीं पे तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने की ट्राई करो ये सारी चीजें तुमको बहुत हेल्प करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स तो ए बी एक कॉर्ड है ए सी इज अनदर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर रेडियस इज आर सच दैट ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए सी ए बी इज डबल ऑफ ए सी ठीक है इफ पी एंड क्यू आर द डिस्टेंसेज ऑफ ए बी and AC from the center. P is the distance of AB, Q is the distance of AC from the center of the circle. Then prove that 4Q square is equal to P square plus 3R square. अब इसमें एक बात बताओ देखो P क्या है डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड AB from the center है ना ऐसा ही बोल रहा है तो P क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB का P से डिस्टेंस तो ये तुम्हारा P हो जाएगा एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AC इट विल बी Q ये तुम्हारा Q हो गया ठीक है अब सपोज इफ आई टेक AC एज डिस्टेंस X तो AB इज डबल ऑफ AC तो AB जो हो जाएगा दैट विल बी 2x ये भी करेक्ट है एंड सिंस दे आर डिस्टेंसेस आई क्लियरली नो कि सर ये जो एंगल जो है बिटवीन AC एंड ON एंड बिटवीन दिस OM एंड AB तो दिस एंगल इज 90 डिग्री ये भी पता है अपने को एंड सिंस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल तो ये BC जो है OC जो होगा वो तुम्हारा रेडियस है एंड OB जो है वो भी तुम्हारा रेडियस हो जाएगा दिख रहा है सब कुछ तो ये सारी बातें अपने को दिख गई है बेटा तो देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं पहली बात कि अगर इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड तो ये वाला पार्ट तुम्हारा हाफ ऑफ x हो जाएगा x/2 एंड ये वाला पार्ट तुम्हारा हाफ ऑफ 2x हो जाएगा विच इज x ठीक है ये सारी चीजें दिखी हैं तो देखो भाई अपने को क्या क्या पता है अभी तक भाई वी नो फर्स्ट थिंग OM is equal to P ON is equal to Q and AC is equal to X so AB is equal to 2X OM is perpendicular to AC and AB and ON is perpendicular to AC ठीक है so if it is perpendicular we can clearly say sir CN जो होगा that will be half of AB that is CN अरे यार उल्टा लिख रहा हूं मैं CN थोड़ा सही है उल्टा लिख दे रहा हूं let me rewrite it पहले OM वाला लिख देते हैं ठीक है तो भाई फर्स्ट आई कैन से कि सर BM जो होगा that will be equal to half of AB क्यों because perpendicular from center bisect the chord that is half of 2x मतलब कि x हो जाएगा right and CN जो होगा that will be half of AC मतलब half of x that is x/2 ये सारी चीजें बेटा अपने को पता है अब देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल क्लियरली आई कैन सी वन इज ट्राइंगल CNO और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है तुम्हारा OMB ये दो ट्राइंगल है लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम इन बोथ द ट्राइंगल्स तो इन ट्राइंगल CNO एक बात करते हैं कि सर जी इन ट्राइंगल CNO में क्या होगा इन ट्राइंगल CNO में बेटा आई विल से
कि सर जो हाइपोटेनियस है दैट इज CO, तो CO स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। CO इज रेडियस, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू CN इज x/2 होल स्क्वायर प्लस NO इज Q स्क्वायर। सॉल्व करो, R स्क्वायर इज x स्क्वायर बाई 4 प्लस Q स्क्वायर। अब देखो बेटा, मेरे को चाहिए इक्वेशन प्रूफ करना है मेरे को Q स्क्वायर, P स्क्वायर और R स्क्वायर में, x नहीं चाहिए। तो लेट अस गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। शिफ्ट Q स्क्वायर ओवर देयर, तो मिल जाएगा तुमको x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एंड यू आर गेटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर। ये 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बेटा? दूसरा ट्राइंगल इज ट्राइंगल OMB। ट्राइंगल OMB की बात करें, इन ट्राइंगल OMB में परपेंडिकुलर इज एट M, ये परपेंडिकुलर इज एट M, तो दिस इज योर R, OB इज योर R, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। OB is R, so R square, OM is P, तो P square plus MB is X, so X square। तो यहां से X square क्या मिला बेटा? R square minus P square। अब एक बात बताओ बेटा, लास्ट इक्वेशन जो था वो भी X square का था, जो ये ग्रीन इक्वेशन दैट इज ऑफ द X square, ब्लू द येलो इक्वेशन दैट इज ऑल्सो ऑफ द X square। तो मेरे को पता है कि सर जी लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। वी नो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो सेम होना चाहिए, दोनों x स्क्वायर के हैं। तो 4R स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4Q स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, रेस्ट को उधर शिफ्ट करो, तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर विल बिकम प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4Q स्क्वायर बन जाएगा 4Q स्क्वायर। तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज 3R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज 4Q स्क्वायर। मिल गया ना? 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड डायरेक्टली। ठीक है, तो देख लो बेटा, हर क्वेश्चन में यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम। डायग्राम को अच्छे से समझना, और लगभग हर क्वेश्चन में ये यूज हो ही रहा है कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, दो कॉर्ड इक्वल रहते हैं तो दे आर इक्वल डिस्टेंस। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बेटा, ये छोटे छोटे थियरम्स जो है, ऐसे नॉर्मली तो इनका प्रूफ पूछते हैं एक दो क्वेश्चन के लिए, वरना ये जो बाकी सारे क्वेश्चंस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इफ आई डिडंट नो सपोज कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो मेरे को पता ही नहीं चलता ना कि MB x है, CN जो है वो x/2 है। तो ये छोटी छोटी चीजों में जो शुरू की थियरम्स है वो बहुत यूजफुल होती है। तो कोई भी थियरम को लाइटली नहीं लेना है, सारी थियरम्स को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त थियरम्स याद आती रहे। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो BC जो है दैट इज अ डायमीटर। देखो, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो इट इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल। चलो बहुत अच्छी बात है, AB एंड CD आर पैरेलल। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। अभी अपने को क्या प्रूफ करना है बेटा? AB एंड CD आर इक्वल। तो इसमें ना देखो, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन डायग्राम में दे दिया है। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग कि वी विल ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OM। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन है OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। अभी अगर OL परपेंडिकुलर है बेटा, तो आई कैन से LB जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ AB एंड ये CM जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ CD। ठीक है, अब देखो ये भी पता है दैट AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, AB एंड CD दे आर पैरेलल, अपने को ये बात पता है। तो अब दो ट्राइंगल लो, कौन कौन से ट्राइंगल? ये दोनों ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OLB एंड ट्राइंगल OMC, देखो पहली बात तो बेटा कि यार ये जो एंगल होंगे, एंगल O पे जो दो बन रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल LOB इज इक्वल टू एंगल MOC बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ये जो एंगल है B पे और एंगल C पे, ये भी इक्वल होंगे भाई, कॉर्ड्स आर पैरेलल।
तो आई कैन से सर एंगल LBO इज इक्वल टू एंगल MCO बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंड इन दोनों एंगल के बीच में वी हैव OB एंड OC, बोथ आर इक्वल बिकॉज दोनों क्या है, रेडियस है तुम्हारी। तो आई कैन से इनके बीच में OB इज इक्वल टू OC बिकॉज दे आर रेडियस। तो ये कौन सा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल OLB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMC, एंड सिंस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेटा, सिंस दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, तो यार आई कैन डेफिनेटली से कि सर जी बाय CPCT आई कैन से LB इज इक्वल टू CM, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब LB बेटा मैंने शुरू में लिख दिया हाफ ऑफ AB है, एंड CM इज हाफ ऑफ CD, हाफ से हाफ कैंसल्ड, AB इज इक्वल टू CD। सिंपल सिंपल, एक छोटा सा कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ करना था, हो गया। और यहां भी देख लो वी आर यूजिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो कितना इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्राइंगल्स और ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOB इज 70 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल OCA एंड एंगल OAC। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखो यार, यू कैन क्लियरली सी कि ये AB जो है ये एक आर्क है, AB इज एन आर्क, ओके, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क और दिस कॉर्ड AB, ये जो है वो 70 डिग्री है। तो बेटा वी नो एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट at the circumference or in the remaining part of the circle। तो मेरे को ये पता है कि सर एंगल ACB is what, half of एंगल AOB, है ना, कौन सी थ्योरम है ये, एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये वाला पता है आप देखो। तो एंगल ACB हाफ ऑफ AOB हो गया, तो एंगल ACB कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ एंगल AOB इज 70 डिग्री, तो मतलब एंगल ACB तुम्हारे को आ गया 35 डिग्री। एंगल ACB कितना, ये वाला एंगल आ गया 35 डिग्री, एंगल ACB यही है। अब एक काम करो यार, इन ट्राइंगल OCB देखो, इन ट्राइंगल OCA सॉरी, इन ट्राइंगल OCA में अगर तुम बेटा एक बात देखोगे तो यार ये बात क्लियरली दिख रही है कि सर ये OC एंड OA दे आर बोथ इक्वल टू ईच अदर, OCA तो एंड OA बोथ आर इक्वल। तो इफ आई से कि सर OA एंड OC आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, तो एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC। अब अगर एक बात बताओ, ACB कौन सा एंगल है, ACB इज नथिंग बट ये वाला एंगल, मतलब एंगल OCA अपने को दिया हुआ है, तो एंगल OCA अगर 35 डिग्री है तो एंगल OAC जो होगा वो भी 35 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल जो है दे बोथ आर इक्वल टू 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 35 डिग्री, both are equal to 35 degree. So here we have used this theorem, angle at the center is double of the angle at the circumference. Okay, next question देखो, next question बहुत easy है। In the given figure O is the center of the circle, angle PBC दिख रहा है कहां पे है, PBC ये 25 डिग्री है, APB 110 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ADB, ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला। तो देखो पूरा खेल जो है वो खाली एंगल्स का है। तो पहले ये देखो कि कौन कौन से एंगल हम लोग पता कर सकते हैं, कौन कौन से एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। एक तो ये क्लियर है बेटा कि ये वाला एंगल पता कर लेंगे। देखो कोई सेंटर पे है नहीं है कि सेमी सर्कल हो गया तो ये 90 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेंटर पे नहीं है, सेंटर से ऊपर है। ठीक है, तो पहले तो मैं बोलूंगा कि सर एंगल APB प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APB मेरे पास 110 डिग्री है तो BPC मेरे को मिल जाएगा। सो एंगल BPC कितना आ गया बेटा, 70 डिग्री, ये वाला एंगल 70 हो गया। अब ये ट्राइंगल PCB तो हम लोगों को आराम से
थर्ड एंगल आराम से मिल जाएगा भाई। इन अ ट्राइंगल इफ आई नो टू एंगल्स, थर्ड एंगल आई कैन इजीली फाइंड आउट। तो आई कैन से कि सर इन ट्राइंगल PCB एक एंगल 70 डिग्री, एक एंगल 25 डिग्री और तीसरा एंगल इज योर एंगल PCB। ये तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से यू कैन से सर एंगल PCB इज इक्वल टू 70 प्लस 25 इज 95। तो 180 माइनस 95 इज 85 डिग्री। एंगल PCB 85 आ गया। तो ये वाला एंगल बेटा अगर 85 है तो एंगल PCB और एंगल ACB सेम ही थिंग है। मतलब एंगल ACB तो सेम है ना, ये P की जगह यहां से ले लो, बात तो सेम ही है। तो एंगल ACB इज 85 डिग्री। अब अगर एंगल ADB बोल रहा है तो एक बात देखो ना यार, एंगल ADB और एंगल ACB ये जो दोनों एंगल हैं दे बोथ आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये कॉर्ड है तो एंगल ADB जो है ये है एंगल इन दिस सेगमेंट, एंगल ACB इज आल्सो एंगल इन दिस सेगमेंट एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 85 डिग्री। रीजन क्या हो गया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। तो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर BD इज इक्वल टू DC। BD और DC जो है वो दोनों इक्वल हो गए एंड एंगल CBD, ये CBD जो है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल पता करना है। तो पहली बात यार, इन ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC में अगर मैं देखूं तो मुझे पता है BD इज इक्वल टू CD। सो इफ टू साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। तो BD के अपोजिट ये हमारे एंगल है, CD के अपोजिट ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ये अगर 30 है तो ये वाला भी 30 होना चाहिए। तो आई कैन से देन एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, बोथ आर इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये दोनों अगर 30 डिग्री है बेटा तो क्या ये थर्ड एंगल हम लोग निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से? यस। तो यार अगेन इन ट्राइंगल BDC मेरे को पता है कि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मिल जाएगा एंगल BDC इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। ये वाला एंगल तुम्हारा 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर एंगल BDC जो है ये अगर 120 है, अब एंगल ABC पे कैसे आऊं, एंगल BAC पे कैसे आऊं मैं? अब एक बात देखो, यहाँ पे एक बात तुम लोगों को सही दिख रही होगी कि यार ये जो ABCD जो है, A इज ऑन द सर्कल, B इज ऑन द सर्कल, D इज ऑन द सर्कल, C इज ऑल्सो ऑन द सर्कल। तो मेरे को ये पता चल गया ना कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको पता है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये A एंड D ये दोनों सप्लीमेंट्री दिख रहे हैं, अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं साफ। तो आई कैन से कि सर जी एंगल A प्लस एंगल D मस्ट बी 180 डिग्री। एंगल A का पता नहीं बट एंगल D इज 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब तुम्हारा एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो बस आज के सेशन में इतना ही। प्लीज इसका NCERT अब करना चालू कर दो, एक शॉट में पूरा NCERT खत्म कर दो। छोटा सा चैप्टर है, थ्योरम्स एक बार करके एक दिन में या 2 दिन में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दो, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं स्टार्टिंग में बेटा बता रहा था वेदांतु सब्सक्रिप्शन का, तो व्हाट यू नीड टू डू कि तुमको ना इस लिंक पे जाना है vdnt.in/ytpro। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है कमेंट, उस पर क्लिक करो। आफ्टर दैट सेलेक्ट ग्रेड 9 CBSE 2021 और ये गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में तुम्हारे पास में ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स का। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स का। ठीक है, अब उसमें क्या होगा ना बेटा, अभी तुम्हारे पास में एक अच्छी चीज ये है कि अब पहले 15% ऑफ होता था, बट अभी तुमको 20% ऑफ मिल रहा है। कितना?
20% ऑफ, तो और भारी छूट मिल रही है 1 मंथ पे भी, 3 मंथ्स पे भी और 6 मंथ्स पे भी। तो कूपन कोड तुम्हारा सेम रहेगा GP Pro। GP Pro लगाओ, 1 मंथ पे भी मिलेगा, 3 मंथ्स पे भी मिलेगा और तो और 6 मंथ्स पे भी मिलेगा 20% ऑफ। तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का फायदा उठाओ, 20% ऑफ मिल रहा है। एंड ये जो प्राइस दिखा रहा हूं मैं 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की या 1 मंथ की, ये प्राइस सिर्फ मैथ्स की नहीं है बेटा, इट इज फॉर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST एंड इंग्लिश। सारे जो तुम्हारे 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बस कूपन कोड यूज करो एंड वेलकम टू वेदांतो, करेक्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। सर्कल चैप्टर इतना ही है, बहुत इजी सा टॉपिक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम लोगों को ज्यादा मजा आएगा। स्पेशली 2 थ्योरम्स के जो प्रूफ मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल ऑफ एट द सर्कमफ्रेंस, और एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला प्रूफ। ये दोनों प्रूफ एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एंजॉयड दिस, सब कुछ कवर हो गया है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।